Assalamu alaikum and good afternoon. I am Sayyid Ali Hassan, and we are here live again for another highly interactive and informative session from the platform of Hotel One Private Limited. Just to recall that the initiative which we took prior COVID lockdown has now become a significant part of our interaction and training through this social podium. Today with me is Mr. Asad Rahman, who is the Director HR and OD OT1. Mr. Asad, it's a warm welcome to you, and thank you for making your presence available for this meeting. Thank you, Ali. Okay. Now coming towards the guest speakers, and I must say these two ladies have been in the limelight for a relative long time now, and it's extremely, I'm glad, and it's great to see the encouragement and the appreciation they are receiving from the platforms throughout the country. So it's a huge honor. I know you both must be extremely busy these days, and for that we are thankful for sparing your time for this session. Sania Alam and Ima Alam. Thank you so much for having us. Thank you, Ali. Thank you, Asad. It's a complete pleasure. Starting this webinar, we would be starting with Sania Alam. First of all, we would be welcoming her, who is considered to be the real mentor and the architect behind this extreme talent and flair and this achievement. So we are extremely pleased to have you on this platform. Just for a brief intro, Sania Alam is a super learning master trainer at the moment, and she is also associated with the Institute of Human Memory Development International. Sania, just a brief intro from your side, and then we'll be going to the champion. So thank you once again for having us. I'm Sania Alam, as you said, and I'm the trainer for Emma Alam as well as Team Pakistan, who broke multiple world records in the World Memory Championship. And I'm also the trainer for mind mapping competitions and speed reading competitions. We have a team that has achieved a lot in the past 2 years. And so I'm the trainer for them. I'm also the arbiter, as in a judge for these competitions. I'm a judge also for Guinness World Records. So I'm a memory judge for Guinness World Records. So I have done a lot of things. And one of the top would be that I am one of the only 4 in the world to hold senior level certification for the trainings that I provide. Okay. Great. So you are basically the mastermind behind all this, huh? I guess you can say that, yes. It must be an honor. It must be an honor. It is. Now coming towards the champion, it's my sheer pleasure and honor to welcome the champion Ima Alam, who has recently conquered the 29th World Memory Championship, which was being hosted in London, I think late December 2020. So just to move forward, I must emphasize that the fact that she just didn't won the championship, but also she created a number of world records, I think so. To my information, in 3 of the 10 categories, including the names and faces, dates and words, that is a huge achievement. Indeed. So coming towards you, Emma, I can see those medals hanging, and that must be an honor. It is an honor. As you said, that this championship's been happening for the past 29 years. And for the first time, Pakistan took the whole title. And my team, including me, broke 4 world records, and we achieved, we got 15 medals in total. That is one big achievement. That is superb, Ima, and as Ali said, we are blessed to have you, and we are delighted to have you. Moving forward, Ima, we will be having this session on question and answer basis. We'll be asking some questions for viewers. So to start with, can you brief us on the competition, the format, how does it happen, how many countries participated in it? So this was a 3-day competition in which 300 participants competed from 16 countries, which included India, China, USA, Canada, and this competition consists of 10 disciplines, which are 10 different events in which they test your memory. So that includes hundreds of words, thousands of binary numbers and random numbers, abstract images, dates, names and faces. And then you're given a specific time period to memorize this information, and then that material is taken away, and then you're given a blank sheet of paper on which you have to recall everything from memory.
So as an example, I'll give an example of three disciplines. So one is binary numbers, which is you were given 30 minutes to memorize random binary digits, which is just 10110, and there's no Okay. there's no pattern to these. So I Okay. memorized 4,170 binary numbers in 30 minutes. And another Oh. example is names and faces, in which I also broke the world record. So in this, you're given a face that you've never seen before. Then you're given a first name and last name. And this could be from all around the world. It could be Chinese, Indian, French, and you're given 15 minutes to memorize it. I memorized 218 names in 15 minutes, which was a new world record. So Ima, we cannot even remember the thing that happened a minute earlier. So like how Emma is going about remembering so many things in such a less time? Have you started from your childhood? What is your mode of practice for this? So I'll tell you how I started. So I did not have a good memory to start with. I had an average memory. I used to be the student who would, go in an exam hall and go blank, because that's what we all do. We don't remember. We're not able Yeah. to retain information for that long. So two Yeah. years ago, my parents came across their institute, which is the Institute of Human Memory Development, which is now also known as Futuristic Learning. So they introduced me to them, and I took training for my studies. So after that, I was not only able to ace my exams and remember everything efficiently, but I was so interested and I enjoyed it so much that I wanted to take it further, and then I took it forward to competition level. So then I seek training from her for the past 2 years, and I've been training for 6 to 8 hours for the competition. And then I was able to compete against the world's top athletes and win. No, that is phenomenal, Ima. Honestly, like again, as I said, that we cannot even remember the thing that happened a minute earlier. You're remembering so much, so that is phenomenal. So, Ima, how what were your feelings when you won this competition? I believe this competition was online this time, virtual competition. Yes, due to COVID reasons, it was online. But each year, usually this happens in different countries like China and countries like that, Hong Kong. And so the reason I took this training, as I said, was because I was a struggling student. And what they teach you is how your brain naturally learns. Because we don't know Okay. that our brain is already capable. We've been gifted with this supercomputer in our hand, in our bodies, that is able to accomplish so much, and we have not even started tapping into the limits. And how Ima felt when she came to know that I have won this competition. I was overwhelmed, and I was very, very happy to know that all that hard work paid off. My parents and my nation was proud. जी अली. Uh, yes, now coming toward the question जो हमारे आज के टॉपिक के साथ भी related था कि how your brain works to memorize all this stuff. Just get into some slightly into the technical terms कि जी कैसे how you just train your brain to memorize all those stuff. First to the trainer, and then the champion can also answer this. Ali, these are all techniques. Basically, if you know how your brain learns, nobody teaches us the mechanism of the brain. So we do everything to keep our body fit, but we do nothing to keep our brain fit. तो ये जो दिमाग है हमारा सुप्रीम ब्रेन है, जिस अगर इसकी सुप्रीम होने की प्रूफ दूँ तो जैसे दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं किसने बनाया? इंसान के दिमाग में. जो रॉकेट्स आउटर स्पेस में जाते हैं, ठीक है, वो किसने बनाया? इंसान के दिमाग में. जो सबमरीन्स डेप्थ ऑफ ओशन को एक्सप्लोर करती हैं, किसने बनाई? इंसान के दिमाग ने. येट अगर हम उसको उसी दिमाग को किसी लर्निंग में लेकर आए, अगर हमें एकेडमिक किताब पकड़ाई जाए तो हम वो स्ट्रगल करते हैं उसमें. वी कैन नॉट रिमेंबर विदाउट रोट लर्निंग. तो ऐसा कैसे? कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, कहीं पर कुछ मिसिंग है. एंड व्हाट्स मिसिंग इज लर्निंग हाउ टू लर्न. दिस एलिमेंट ऑफ लर्निंग जिससे आपको ये सिखाया जाता है कि आप सीखते कैसे हैं.
कोई एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखा रहा, कोई पेरेंट्स ये नहीं सिखा रहे, कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट, कोई चीज़ नहीं है जो कोई ऐसा सिस्टम जो स्टूडेंट्स को ये सिखाए कि अच्छा बेटा अगर आपको स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो ये टेक्निक्स है अपने दिमाग के इस्तेमाल के लिए। सब ये बताते हैं what to learn, what to memorize, what to read, what to study, how to memorize, how to read, how to study, ये सब कोई नहीं बताता। ये जो how to का जवाब है ये हमारे इंस्टीट्यूट के पास है। So basically what we're doing through our institute is हम super learning systems लेकर आए हैं पाकिस्तान में। Even though our project is global, but within Pakistan we have special interest because it's being our own nation. तो वो सुपर लर्निंग सिस्टम्स हम जिसे कहते हैं वो ये है कि कैसे कम टाइम में आप तेज़ी से और ज़्यादा सीख सकते हैं। आप तेज़ी से और ज़्यादा सीख सकना सिर्फ स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है बल्कि प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है। तो often we get mistaken that okay, is it something related to students only or is it for professionals? But yes, it's for students and professionals. So super learning उसमें हम 3 pillars जिनको हम top courses कहते हैं या top skills कहते हैं, those are mind mapping, speed reading and memory skills. And we have many more courses, but these are the top. तो इन courses में क्या होता है, you can attend these courses और हर course 30 hours का होता है, यानी 30 hours में हम आपकी यादाश्त improve कर देंगे, 30 hours में हम आपका speed reading improve कर देंगे, and I'll talk to you about speed reading a little bit later as we continue this, and 30 hours में हम आपकी mind mapping की skill बढ़ा देंगे। तो 30 घंटे में वो चीज़ आपको सिखा देते हैं जो आपको किसी ने नहीं सिखाई। आपकी यादाश्त कैसे काम करती है, देयर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इट। अगर 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी की बात करूँ तो फर्स्ट इज़ रिकॉर्ड, सेकंड इज़ रिटेन एंड थर्ड इज़ रिकॉल। तो यादाश्त से कोई चीज़ वापस ला सकना वो तो तीसरा स्टेप है। अक्सर लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई चीज़ याद नहीं आ रही, इफ़ आई कैन रिकॉल एनीथिंग तो यादाश्त ख़राब हो गई है, मेरी यादाश्त अच्छी नहीं है, ख़राब होती जा रही है, उम्र हो गई है। दैट्स नॉट द केस। यादाश्त एक पैसिव चीज़ नहीं है, यादाश्त एक एक्टिव चीज़ है, उसको करना पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ अली मेरा नंबर नोट करें, तो आप उसके लिए कोई ना कोई टूल इस्तेमाल करेंगे, राइट? आप या पेपर पेंसिल लेंगे या फ़ोन उठाएंगे सेव करने के लिए। अगर आप इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप मेरा फ़ोन नंबर, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो लाइकवाइज अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप कौन सी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं दिमाग में रिकॉर्ड करने के लिए, उसको वहाँ पे रखने के लिए जब तक आप चाहते हैं। इट कुड बी फ्यू सेकंड्स, इट कुड बी फ्यू मिनट्स, इट कुड बी ईयर्स। और फिर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं टू रिकॉल दैट इन्फॉर्मेशन। सो ये मैकेनिज्म जब आप समझ जाएंगे और इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो यादाश्त इज जस्ट लाइक दैट। अच्छा सनी, जस्ट इंटरप्ट लिटिल बिट, मुझे ये बताइए कि अभी मतलब आपने इट इज जस्ट अ 30 आवर कोर्स, बहुत मतलब एक्सेसिबल है टू एवरीबॉडी, व्हाई इट इज नॉट गेटिंग दैट मच पॉपुलैरिटी जो एक्चुअली इसको होनी चाहिए? इट इज, आपको मेमोरी इज द मेन रीजन बिहाइंड योर सक्सेस। किसी भी फेज में चले जाएं आप, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इन द फेज ऑफ योर लाइफ, memory is the thing which will make you a successful person. So why are still we are not emphasizing on this, in the significance of this? जो आपने भी जी अली, सबसे पहले तो दिस इज़ रिलेटिवली न्यू टू पाकिस्तान। बाहर के नेशंस में, दुनिया भर में ये चीज़ें बहुत हैं। इनफैक्ट चाइना टॉप पे है इस वक्त, वो अपने आप को लर्निंग नेशन कहता है। बट विद इन पाकिस्तान इट्स रिलेटिवली न्यू, नोबडी हैज़ दिस अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा भी कुछ होता है। और दूसरा अली, जो हम बात कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम बदल सकते हैं। कैसे? आपकी जो बेसिक 12 साल की एजुकेशन है उसके लिए आपको 12 साल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो यू कैन, वो 12 साल की एजुकेशन आप सुपर लर्निंग के ज़रिए, आपकी मेमोरी शार्प है, आपकी स्पीड रीडिंग स्किल्स शार्प हैं, आपको माइंड मैपिंग आती है यानी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट आती है, आप ये 3 पिलर्स ऑफ लर्निंग इस्तेमाल करें और आप 12 साल की पढ़ाई 2 से 3 साल में मैक्सिमम कर सकते हैं। अब ये चीज़ जब आप बताएंगे किसी को, अव्वल तो ये इट्स बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो मानेगा ही नहीं इस बात की। एग्जैक्टली। प्लस एजुकेशन सिस्टम्स, they have this setup where they're taking 12 years of your time and to do whatever they do. But अगर उनको ये बात बताई जाए तो who would like to easily accept this? But we are getting there. हम लोग हज़ारों को ट्रेन कर चुके हैं। जब से हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था पाकिस्तान में, तब से लेके अब तक इंस्टीट्यूट के ज़रिए जो हमारा कराची में है, हज़ारों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में 800 ऑफिसर्स को ट्रेन कर चुके हैं। विद इन अगर पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो एंग्रो फर्टिलाइज़र्स को हम उनकी जो हायर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। हम
PCSIR को ट्रेनिंग दे चुके हैं. सो वी आर गेटिंग देयर. पाकिस्तान धीरे धीरे जो है इस बात की अहमियत समझ रहा है कि अब वो ज़माना नहीं रहा अली एंड असद कि जहाँ पर वो चीज़ की जाए जो हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स करते आए हैं. टाइम बदल रहा है. आजकल के ज़माने में यंगस्टर्स जो है मिलियनियर्स बिलियनियर्स बन रहे हैं. कैसे? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके. वेयर एज पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ यूँ स्मार्ट लोगों को बना रहा है या मिलियनियर्स बिलियनियर्स बन रहे हैं. कैसे बनते हैं? ठीक है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो आपको ये बता सके बिल गेट्स कैसे बनना है. ओके, ये किताब पढ़ेंगे या इस जमात से गुजरेंगे तो आप बिल गेट्स बन जाएंगे या मार्क ज़करबर्ग बन जाएंगे या इलॉन मस्क बन जाएंगे. तो ये कुछ ज़ाहिरी बात है कुछ हट के है जो करना पड़ेगा जिससे आप इसी से रिलेटेड एक मेरा सेकंड पार्ट भी था इस क्वेश्चन का कि एक बड़ी मिथ है जो आजकल हर एक को घर में सुनती है कि जी इसका जहन इतना शार्प नहीं है, इसका जहन इतना शार्प. सो इज इट इन रियलिटी कि जी जहन में फर्क है लोगों के या इट्स द वन हु इज वर्किंग ऑन इट ही इज सक्सेसफुल? नहीं देखिए, या होता है कि इसमें डेफिशिएंसीज इन समथिंग इज देयर. हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये होता है कि जो रट्टा एक्सपर्ट होता है वो टॉप कर जाता है. ठीक है, जो बहुत ही पढ़ाकू होता है सुबह से लेकर रात तक पढ़ता रहता है और इन्फॉर्मेशन को एक मखसूस टाइम तक स्टोर कर लेता है थ्रू एनी मीन्स, चाहे रट्टा या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके, तो वो फर्स्ट आ जाता है, पास हो जाता है. और फिर कुछ है स्टूडेंट्स जो नहीं कर पाते क्योंकि उनसे रट्टा नहीं मारा जाता, उनसे नहीं स्ट्रगल की जाती, तो वो फेल हो जाते हैं. बट अगर आप सही टेक्निक सिखाएं तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्टूडेंट दें और मेरे सामने 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 30 के 30 उनको सही तरीके से सिखाएंगे तो सेम लेवल पे एस करेंगे. इट्स जस्ट कि किस तरह आप सिखा रहे हैं. क्या आपने देखा है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? हैज़ एनीबडी स्टडीड कि जो सामने बच्चे बैठे हैं वो सीखेंगे कैसे? हाउ डज द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन? हाउ डज द ह्यूमन ब्रेन लर्न? ये नहीं है हमारे पास किताबें हैं, इसको पढ़ना है, इसका एग्ज़ाम देना, अब जैसे भी हो. अब वो वही किताबें हैं जो हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ते आए हैं. वेयर इज़, अगर हम अपने फ़ोन की बात करें, जैसे ये आईफोन है इस वक्त, ठीक है, इसको जो है एवरी ईयर अपग्रेड चाहिए होता है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड डज इट. तो ऐसे कैसे कि हमारे एक गैजेट को, हमारे डिवाइस को भी एवरी ईयर अपग्रेड की ज़रूरत होती है, वेयर एज आवर एजुकेशन सिस्टम या आवर लर्निंग सिस्टम मंडेन एंड ओल्ड मेथड्स पे चल रहा है अभी तक. Times have changed and so does our learning system, our education system, and our means to achieving success. It also has to change. Okay, so Ima and Sania, like आप अब काफी जगहों पे काफी सेलिब्रिटीज के साथ एंड गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर के साथ मिल रही हैं. सो आज लॉबिंग फॉर दिस थिंग कि हम ये जो पर्टिकुलर मेमोरी ट्रेनिंग है ये अपने करिकुलम के साथ या अपनी एजुकेशन के साथ इसको करवाएं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो शुरू से ही ये लर्न करें कि उन्होंने चीज़ों को मेमोराइज और प्रैक्टिकली कैसे यूज करना, रादर देन कि हम 30-35 साल के हो जाए हमें पता चले कि अच्छा ये भी कोई एक चीज़ होती है जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं. असद, एक्सेलेंट क्वेश्चन. हम यही कर रहे हैं कि इसको कैसे एजुकेशन सिस्टम्स के करिकुलम में डाला जाए ताकि बच्चा सबसे पहले ये हुनर हासिल करे कि उसको उसकी याददाश्त कैसे काम करती है. उसको आप कुछ भी अगर दे रहे हैं लेकिन नहीं बता रहे कि याददाश्त में कैसे स्टोर होगा तो वो नहीं कर पाएगा. तो दीज 3 सेट ऑफ स्किल्स, मेमोरी स्किल्स, स्पीड रीडिंग, माइंड मैपिंग, ये सबसे पहले उस बच्चे को एज अ गिफ्ट आप दें ये स्किल्स. उसके बाद उसको जो पढ़ाएं वो एक्सेलेंट तरीके से करेगा, कम टाइम में करेगा. एंड यहाँ पर ये भी बताती चलूँ आपको मैं कि 7 साल से पहले अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन उसकी शुरू कर रहे हैं, तो ये उसके साथ ज़्यादती है क्योंकि 7 साल की उम्र से पहले बच्चे का फिजिकली दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो फॉर्मल एजुकेशन शुरू कर सकते हैं वो डेवलप नहीं हुआ होता. तो वो सिर्फ रोट लर्निंग के कॉपी के थ्रू ये चीज़ करता है, स्ट्रगल करता है. तो अगर एक बच्चा जिसको आपने 7 साल की उम्र तक ग्रो करने दिया, उसकी जो नेचुरल वर्ल्ड की डिस्कवरी है वो उसको करने दिया, उसको प्ले अराउंड करने दिया, इवन दो वी से कि वो प्ले अराउंड कर रहा है या टाइम ज़ाया कर रहा है, बट वो ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पे. जब उसको वो करने देंगे वर्सेस उस बच्चे को जिसको हमने 1 या 2 साल में स्कूल में डाल दिया, तो आप देखेंगे कि बच्चा जिसने 7 साल में एजुकेशन शुरू की वो स्मार्टर होगा, ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा होगा वर्सेस जो बच्चा यंग एज में स्कूल में डाल दिया गया था. इनफैक्ट ये जो यंग एज में स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया जाए ये भी सिर्फ बहुत पुराने ज़माने में जब औरतों को काम करना होता था
तो उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को स्कूल भेजें ताकि वो काम पर वापस जा सकें. So it was Yes. not for the well-being of the children, but as just a tool जिसके ज़रिए वो औरतें वापस काम पर जा सकें. Excellent, but Ima, sorry Sania, on the other hand आपने देखा भी होगा कि हमारे अंदर हमारी जो सोसाइटी है उसमें मिथ चलती है. So अगर फूफो का बेटा 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू हो गया है तो मेरा बेटा 2.5 साल की उम्र में जाना चाहिए, अदरवाइज वो पीछे रह जाएगा. और यही मिथ्स फिर ऑब्वियसली वो उसकी नेगेटिव इफेक्ट होता है उसकी मेमोरी, ब्रेन, ईच एंड एवरीथिंग. सो हाउ कैन वी ब्रेक दीज मिथ्स? मेरे पास ना कई टीचर्स आई हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है. तो वो थे केजी की क्लास के, वो उसके टीचर्स थे. अब उनको जब ये बात पता चली कि ऐसा ब्रेन डैमेजिंग है यंगस्टर्स को वो डालना, तो वो नेक्स्ट डे गए जब स्कूल, तो उन्होंने एक साल का बच्चा था जिसको उनके पेरेंट्स इनरोल करवाने आए थे, तो उन्होंने मना कर दिया उन टीचर्स ने. तो उन टीचर्स के जो जाहिर बात है हेड थे, उन्होंने ये बोला कि आपको किसने राइट दी कि आप बच्चों को इनरोल ना करवाएं, आप बिजनेस खराब करेंगे हमारा. तो आई अंडरस्टैंड दैट it's hard for people to comprehend and accept this fact that अगर बच्चों की वेलबींग चाहिए है, अगर हम बच्चों को ज़हीन बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जहानत आए और ऐसे बच्चे आएँ जो कि इस फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो हमें ये बात समझना पड़ेगी कि जो राइट तरीका है, जो राइट चीज़ है वो करनी चाहिए. डेफिनेटली इट्स अ बिट हार्ड फॉर पीपल टू एक्सेप्ट राइट नाउ, बट हमारा पूरा एफर्ट ही यही है कि ये हम धीरे धीरे समझाएं, एजुकेशन सिस्टम में लेकर आएँ, उनको पता चले कि बच्चे के लिए क्या पहले ज़रूरी है. बट देन अगेन असद एंड अली कि अगर एल्डर्स भी हैं, उम्र भी हो गई है, एजुकेशन ख़त्म भी कर ली है, तो भी ये चीज़ें स्टिल वैलिड है. एट एनी एज आप ये सीख सकते हैं और एट एनी एज आप अपनी ये लर्निंग स्किल्स जो इम्प्रूव कर सकते हैं. Okay, Sania, your course is very explicit and it is like, as you said, of 30 hours. But like, can you give us some, like, say, 2-3 practical tools or suggestions how we can improve our memory? For example, हम लोगों के नाम नहीं याद कर पाते, भूल जाते हैं. 1 सेकंड पहले कोई नाम बता जाएगा, नेक्स्ट सेकंड में हम वो नाम भूल चुका होगा. So like, how we can improve all these skills, memory या numbers याद रखना, ये जो हर डे में हमारे यूजेज के लिए इम्पोर्टेंट है. I would love to give a tip, but tip अगर मैं ऐसे यूँ ऑनलाइन दूँ तो क्या होगा कि क्योंकि वो एक कंप्लीट एक बिल्डअप होती है, वो समझाना पड़ता है, वो समझ में आती है. अगर मैं यूँ बीच में दूँगी तो आपके ही जो व्यूवर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे. बट मैं इतना एक ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप अपनी कॉग्निटिव स्किल्स जो है फॉरएवर शार्प रखना चाहते हैं, आप जो है अपनी ब्रेन एजिंग एंड बॉडी एजिंग जो है उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप करें और ये सब कर सकते हैं, वो ये है कि हर रोज़ या रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया करें. उससे ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो कंटिन्यू टू ग्रो करते हैं एंड आपकी ब्रेन एजिंग या बॉडी एजिंग स्टॉप हो जाती है. बट अगर आप स्टिल लाइफ गुजार रहे हैं, वही रोज़ उठ के वही रूटीन कर रहे हैं, वही सेम जॉब, वही कैश काउंटर के पीछे खड़े होकर पैसे काउंट करना, तो वो सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी एंड ब्रेन एजिंग होगी और आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, जिसमें मेमोरी भी आता है, फोकस भी आता है, प्रोडक्टिविटी भी आता है, लर्निंग स्किल्स भी आता है, वो सब जो है हॉल्ट हो जाएंगी, ग्रो नहीं करेंगी और आपको डलनेस फील होगी उनमें, जिसमें अक्सर लोग कहते हैं याददाश्त खराब हो गई, अब तो बुढ़े हो गए हैं. और इमा, बादाम खाने से मेमोरी कितनी इंप्रूव होती है? Well, this is also a myth kind of कि सिर्फ अगर बादाम खाएंगे तो मेमोरी खुद ही शार्प हो जाएगी. Yes, diet has a very important role in how your brain works, how your body works, but most of it is techniques. आपकी मेमोरी एक मसल की तरह है. सो जैसे आप अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे उसको फिट रखने के लिए, वैसे ही योर मेमोरी इज लाइक अ मसल, सो यू ईदर यूज इट और लूज इट. So if somebody is there and they're not using their memory, they're not polishing their memory, they're not learning how to use it, then they're eventually going to, lose it. Okay. हम लोग तो ये हम लोगों की तो ज्यादा नेचर ही ऐसी ना कि आपने टेक्निक का हम वो तो भूल जाएंगे, लेकिन हाँ डाइट में क्या खाना है वो बता दो, वो हम फौरन खाना शुरू कर देंगे, टेक्निक्स पे हम नहीं काम करेंगे. अच्छा, so can you identify few diets, कुछ डाइट, कुछ सिग्निफिकेंट डाइट हो कि जी बादाम तो हम सबको ही पता है, इसके अलावा कुछ जो हमें ना पता हो एंड इजी टू एक्सेस हो टू एवरीबॉडी. पानी की इंपॉर्टेंस पे बात करूंगी कि पानी की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम 2% भी डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमारी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी लेवल गिर जाता है.
अक्सर हम वेट करते हैं कि जब प्यासे हों तो पानी पिए, पहले ये Yes. करते हैं, दूसरा जब प्यासे होते हैं तो पानी पीते हैं 2-3 घूंट। अब से आपने एक चीज़ करनी है और आपने लाइफ टाइम करनी है अगर आप अपने ब्रेन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन। आई मीन आई डोंट नीड टू एम्फोसाइज ऑन हाउ इंपॉर्टेंट वाटर इज़ फॉर द ब्रेन। वी आर 72% वाटर, हमारी बॉडी जो है 72% वाटर है, अर्थ पे 72% वाटर है, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, इसका मीनिंग है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी पानी पीना है घूंट में नहीं पीना है, 1 गो में 1 से 2 ग्लास पीना है। उसका जो इम्पैक्ट होगा आपकी बॉडी पर वो अनमैचेबल है विद एनीथिंग। तो 1 से 2 ग्लास पीना है, मतलब फुल ग्लास पीना है, ना कि सिर्फ प्यास बुझाने के लिए 1-2 सिप पी लिया। और दूसरा, आपने प्लास्टिक की बोतल से नहीं पीना है, हमेशा कांच के गिलास से पीना है। इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अगेन पूरी साइंस है पीछे, पर एक क्विक टिप जो है जो अपने बैठे बैठे आप अपने ब्रेन को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इस तरीके से पानी पीने के लिए। एंड डोंट वेट फॉर योरसेल्फ टू गेट थर्स्टी। आप पानी पिए और पूरा पूरा ग्लास पिए, नॉट सिप्स। रेगुलर इनटेक करते रहे पानी। अच्छा अच्छा एमा, जस्ट अ स्लाइट हाईलाइट, मैंने आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द ड्राफ्ट, तो मुझे उसमें था कि आपकी एक टीम थी प्रॉपर जो गई थी, आई थिंक सो इट वाज नॉट एन इंडिविजुअल 1 or 2 पर्सन्स। तो थोड़ा उनके बारे में भी बताएं कि और कौन सी जहां हमने कोई अचीवमेंट्स हमारी उस तरह, क्योंकि माशाल्लाह से जितने मेडल्स आपके पास हैं तो आई डोंट थिंक सो किसी के लिए बचा होगा कुछ और, लेकिन फिर भी कुछ जस्ट फॉर हाईलाइट पर्पस। सो 3 चैम्पियनशिप्स होती हैं इन मेंटल स्पोर्ट्स, जिसमें पाकिस्तान की टीम 2 साल से कम्पीट कर रही है। वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में मेरे साथ सैयदा किसा ज़हरा भी थी, which is who's my teammate, and she also broke one world record. She broke world record in dates. So इसमें आपको 5 मिनट मिलते हैं random dates याद करने के लिए. So they're fictional dates, not numbers or dates, like not when Pakistan was given independence, but it's just fictional. So she memorized 241 dates in 5 minutes, which was a new world record. So that was a proud moment for Pakistan. And there's also mind mapping championship. So mind mapping is basically the art of summarizing. So it works on how your brain naturally works because your brain's visual. So it's a visual learning tool. So isme my teammate Shomi Alam competed, and she went to the France competition for mind mapping, and उन्होंने फ्रांस में जाके उन्हीं का टाइटल ऑफ फ्रेंच माइंड मैपिंग चैंपियन उठा के पाकिस्तान को ले आई. So that was also an achievement. And then that is what I wanted you to brought up in front of everybody. मेरा यही क्वेश्चन था कि ये लेडीज क्यों सारी, where are the boys? Is there anybody, was there in your team? जी बिल्कुल, यानी कि इसका मतलब वो जो एक मिथ और पाकिस्तान में है कि जी खवातीन की दिमाग बहुत तेज है, तो इसका मतलब है that is true, हाँ? एक्चुअली एक और भी हमारे हैं टीम मेंबर जो मेल हैं, वो है नबील हसन। उन्होंने भी वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में कम्पीट किया था और पिछले 2 सालों में वो भी मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट कर रहे हैं। एंड द रीज़न बीइंग वी गेट दिस क्वेश्चन आस्क्ड अ लॉट, एक तो मेल फीमेल का और दूसरा के टीम मेंबर्स, टीम जो है इतनी कम क्यों है। अव्वल तो हमें सिर्फ 2 साल हुए हैं, उस 2 साल में भी 1 साल कोविड को चला गया, लेकिन इन 2 सालों में हम 11 मुख्तलिफ इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में कम्पीट कर चुके हैं, 45 प्लस मेडल्स जीत चुके हैं, 11 प्लस ट्रॉफीज जीत चुके हैं। अब ये है अली कि अगर आपको मुल्क का नाम रोशन करना है या आपको वर्ल्ड क्लास लेवल पे काम करना है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम की डेडिकेशन देनी पड़ेगी। सो कमिटमेंट लेवल एक पेरेंट्स की तरफ से, एक स्टूडेंट्स की तरफ से, बिकॉज पेरेंट्स हैव टू हैव दैट विजन, क्योंकि हम अपने बच्चे को मुल्क के लिए जो है टाइम डेडिकेशन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो नाम रोशन करे। सो हमारे पास वो स्टूडेंट्स फ़िलहाल कम हैं जो इस लेवल पर अपनी स्किल्स को शार्प करना चाहते हैं इतना टाइम देकर। नाउ आई टोल्ड यू कि मेमोरी आप 30 आवर्स में बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड रीडिंग स्किल्स 30 आवर्स में बढ़ा सकते हैं, माइंड मैपिंग 30 आवर्स में बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिशन्स हैं, तो इसमें आप टॉप के लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो जो 29 सालों से कम्पीट कर रहे हैं, तो उसके लिए इट टेक्स डेडिकेशन, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स शार्पनिंग ऑफ स्किल्स। तो ये जो है एमा जो है और बाकी टीम जो है वो 2 साल से इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रही है, 6 to 8 आवर्स डेली।
तो ये हमारे पास अभी फ़िलहाल ऐसा है कि एक लड़का है और बाकी सारी लड़कियां हैं। इंशाल्लाह ये भी बढ़ेगा जैसे जैसे हम पाकिस्तान में इसको फैला रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और उसका आपके लिए, आपके होटल वन की टीम जो है उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने व्यूवर्स तक, अपने ऑडियंस तक, कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर और भी लोग बढ़ेंगे। हम ज़ाहिर बात है मज़ीद लोगों को लाना चाहते हैं, बट येस मेजॉरिटी इस वक्त फीमेल है। अच्छा सानिया, मेरा एक क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ईमा के पास तो सानिया थी, सानिया के पास कौन था इस पूरी जर्नी के लिए? एंड आई हैव रेड दैट यू आर वन ऑफ द फोर इन द वर्ल्ड। अमंग फोर। जी। सो आपकी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन कहाँ से आई कि यू जॉइन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन और फिर आपने इसको एस किया एंड यू आर वन ऑफ द फोर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लाइक आई वन ऑफ जस्ट द ओनली फोर इन द read वर्ल्ड जिनके that. पास सीनियर लेवल सर्टिफिकेशन है ये सुपर लर्निंग सिखाने के लिए। So वन ऑफ द ओनली फोर। मेरा जो इंस्पिरेशन है, मेरे पास कौन था, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे पास मेरी फैमिली थी, एंड फैमिली इज़ हु आई कॉल, जो आपके मकसद में साथ होते हैं। तो ज़ाहिर बात है फैमिली का सपोर्ट था ये चीज़ करने के लिए। सो मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी वो बहुत यंग एज में ख़त्म कर ली थी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। तो फिर एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि सिर्फ सनिया आलम ही एक सुपर लर्नर होगी, सिर्फ सनिया आलम का नाम रोशन करें, या व्हाई नॉट शेयर दीज स्किल्स विद द वर्ल्ड, व्हाई नॉट दूसरे लोगों को भी उनके दिमाग का इस्तेमाल सिखाया जाए। तो एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि इसको लेकर चलते हैं। आई एम फ्रॉम यूएस, वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन की थी। तो फिर एट दैट टाइम डिसाइड किया था। तो फिर हमने 20+ ईयर्स की जो हमारी फैमिली है उन्होंने इसका रिसर्च किया, इंसान के दिमाग, दिल और की पावर्स के ऊपर, प्लस कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर रिसर्च की गई। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम्स लाए और वो किया, हमने लॉन्च किया पाकिस्तान में। मैंने खुद पूरी दुनिया में जाके ट्रेनिंग्स हासिल की हैं। आई बीन एवरीवेयर टू गेन दीज ट्रेनिंग्स। आई मेनली ट्रेन फ्रॉम यूके एंड यूएसए, but Hong Kong, China, London, I've just been everywhere to bring these trainings back to Pakistan so that we can develop mental literacy rate in Pakistan, which we get higher. Okay. And Salim, my next question is there any particular age for the training that you guys are conducting, or like anyone can join for any age bracket? हम लोग 10 साल की उम्र से एक्सेप्ट करते हैं, ऑनवर्ड्स एनी एज। सो और हम सिर्फ 2 चीज़ रिक्वायर करते हैं हमारी इनरोलमेंट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो मेमोरी हो, स्पीड रीडिंग, माइंड मैपिंग या रेस्ट ऑफ द कोर्सेज। और वो ये है, एक तो आप 10 साल के हों, दूसरा ये कि बेसिक इंग्लिश लेवल हमें चाहिए होता है अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि हमारे जो कोर्स कंटेंट होता है वो क्वाइट विजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें इंग्लिश होती है, तो वी वांट कि आप समझ सकें। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लें तो वो तो कम्प्लीटली इंग्लिश में है, बट उर्दू में भी आ रहा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी आ रहा है। और दूसरा ये है कि अगर यंग बच्चा है, यानी 10 साल, 12 साल, 13 साल, तो ओबीडियंस लेवल हमें चाहिए होता है कि उसको अगर ये बोले कि ये किताब है, ये टेक्निक है, इसको फॉलो करें, तो वो ओबीडियंस लेवल चाहिए होता है। तो बस ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, आप यू आर गुड टू गो इफ यू हैव दीज 2 थिंग्स। Okay, and Samir, my next question is there is a term which is called like intelligent quotient or IQ. So what's the linkage of memory and IQ, and are they relatable or they are different, and how useful both are? IQ में और मेमोरी में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट IQ जो है, लेटेस्ट साइंटिस्ट एंड जो बड़े बड़े लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, वो ये कह रहे हैं IQ इज इररेलेवेंट। इट्स नंबर 1 इट्स इररेलेवेंट, नंबर 2 इट कैन बी बिल्ट। ठीक है। और इनफैक्ट यही बिलियनियर्स हैं, यही जो टॉप के कॉर्पोरेट लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इवन GPA जो है, जो ग्रेड सिस्टम है, वो भी नहीं है नेसेसरी अब उस चीज़ के लिए कि अगर आपको कुछ हट के करना है। ठीक है। तो जैसे हम एजुकेशन सिस्टम जो है, आप जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक उसमें क्या होता है कि हम क्योंकि कहीं पे स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है कि आप एक एग्ज़ाम्स दे के पास होते हैं विद एम्प्लॉय मेंटालिटी कि ठीक है, अब मुझे फ़लाँ कंपनी में जाके इस रैंक में काम करना है। बट क्यों उस रैंक में काम करना है? आप क्यों नहीं वो खुद बन सकते जो उस कंपनी का मालिक हो? आप क्यों नहीं वो इनोवेटिव क्रिएटिव पर्सन बन सकते? वाई इट हैज़ टू बी कि आप किसी कंपनी में जाके एम्प्लॉय ही करेंगे, सो इफ एम्प्लॉय ही बनेंगे। इफ़ यू डोंट हैव योर ओन क्रिएटिव आइडियाज़, इफ़ यू डोंट हैव योर इनोवेशंस, तो आप किसी की ड्रीम पूरी कर रहे होंगे रादर देन अपनी ड्रीम। सही। सो
ये IQ and memory या these learning skills don't have anything to do, they're not linked. हम किसी का IQ कम भी है तो उसको भी सुपर लर्नर बना सकते हैं, किसी का IQ हाई भी है तो उसको भी सुपर लर्नर बना सकते हैं. चलिए that is extremely motivating for everybody. मतलब वो अपने आप को इसके डिस्क्रिमिनेशन में ना लेकर आए कि हमें तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी दिमाग तेज नहीं है, वो नहीं है. सो एट एनी एज और एट एनी फेज ऑफ लाइफ यू कैन गेट इनटू दिस और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और इतने सारे मेडल्स ला सकते हैं. आई थिंक सो. अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन. हमारे जो व्यूअर्स हैं दे आर पोस्टिंग क्वेश्चंस ऑन आवर लाइव पेज, तो वी विल बी पुटिंग अप एंड वी विल बी ट्राइंग कि हम उनको टू द पॉइंट आंसर्स दे दें ताकि सारे क्वेश्चंस एंटरटेन हो सके. सबसे पहले हमसे अली गर्देजी साहब पूछ रहे हैं, ही इज सेइंग व्हाट इज एक्सप्लिसिट मेमोरी. सो ही इज Okay. he So know about explicit there are many types of memories जिसमें implicit, explicit memory होती है. एक तो वो मेमोरी होती है जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करूँ अगर क्विकली बोलूँ तो वो फ्यू सेकंड्स के लिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं. जैसे अगर आपको किसी ने नंबर बोला और आपने उसको इस हद तक सिर्फ इतना याद कर लिया कि आप कुछ सेकंड्स के बाद उसको जाके लिख लें. ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हुई. लॉन्ग टर्म मेमोरी वो हुई जिसमें आप 5 मिनट से लेके 5 साल या 50 साल तक भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरीज वो होती हैं जो आपकी बॉडी की, जैसे अगर मैंने एक दफ़ा बाइक चलाना सीख ली या गाड़ी चलाना सीख ली तो आप जो है आपके बॉडी को एक सर्टेन लेवल तक आप सिर्फ उसको सीख रहे होंगे. एक टाइम आएगा जब आप ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे. ठीक है. टाइपिंग आपने एक दफ़ा सीख ली, आप फिर बिना देखे टाइपिंग कर सकते हैं. तो वो एक बॉडी मेमोरी होती है जिसमें आपको याद हो जाता है, बॉडी को पता होता है कि क्या करना है. सो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरीज ये होती हैं जिसमें दोनों काइंड ऑफ वेरी सिमिलर हैं, जिसमें आपको पता होता है. आप गाड़ी में बैठेंगे, आप शीशे फिक्स करेंगे ऑटोमेटिकली, वर्सेस जब आप सीख रहे थे तो आप कॉन्शियसली अवेयर थे कि अच्छा अब शीशे फिक्स करने हैं, अब बेल्ट लगानी है, अब इधर देखना है, अब उधर देखना है, फिर चलाना है. पर एक टाइम आता है जब आप गाड़ी में बैठते हैं, बिना बिना सोचे समझे आप गाड़ी ऑन करते हैं, बेल्ट लगाते हैं, एंड देन यू जस्ट गो. सो दैट वाज द डेफिनेशन. बट आपको हम जिस मेमोरी का हम टारगेट करते हैं, वी डू टॉक अबाउट दीज टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन आवर कोर्स, मेमोरी कोर्स, बट वी वर्क ऑन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. कैसे आप इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं, कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं वहाँ पर एज लॉन्ग एज यू वांट इट. एंड यहीं पर मैं क्विकली भी मेंशन कर दूँ एक वेरी इम्पोर्टेंट बात कि एजुकेशन सिस्टम से एक मेन एलिमेंट मिसिंग है, विच इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ रिविजन. अगर एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जाए कि आर्ट ऑफ रिविजन, तो कोई बच्चा कभी भी दोबारा रट्टा ना मारे. वो इसलिए क्योंकि साइंस ने साबित किया है कि विद इन 10 मिनट्स ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू 70 to 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से निकल जाती है 10 मिनट के बाद. तो आप इमेजिन करें कि आपने बच्चे को स्कूल भेजा, उसने पहला जो अटेंड किया पहला सब्जेक्ट, 10 मिनट गुजरे, उसने इंफॉर्मेशन रिव्यू नहीं की. फिर वो आधे घंटे बाद या एक घंटे की क्लास के बाद दूसरा सब्जेक्ट अटेंड किया, उसने फिर तीसरा सब्जेक्ट अटेंड किया, और कोई भी रिव्यू जिस तरह रिव्यू करनी चाहिए रिव्यू नहीं हो रही. एंड डेली वो क्लास में जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन वो दिमाग से निकली जा रहा है. हर 10 मिनट के बाद वो इन्फॉर्मेशन 70 to 80% निकली जा रही है, एंड देन विद इन 24 आवर्स वो बिल्कुल निकल जाती है. तो दैट इज़ द रीज़न वाई जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो बच्चे सारी किताबें बाहर निकालते हैं, सारे नोट्स बाहर निकालते हैं, दोबारा से क्रैमिंग शुरू कर देते हैं. Okay, and next question, मैं इमा से करना चाहूँगा. Nabil Kazi, he's our viewer. He's asked, don't you think our society and education system actually rewards cramming and not actual learning? And how to revert this situation? I guess we have discussed it, but if you want to shed some light on it. Yes, absolutely. So the reason कि हम rote method पे और cramming पे चले जाते हैं is because बचपन से parents simply हमें स्कूल भेज देते हैं पढ़ने के लिए, and then teachers बोलते हैं घर जाओ homework करके आओ. But in the meantime कोई भी हमें ये नहीं सिखाता है कि कैसे सीखना है, कैसे याद रखना है, कैसे पढ़ना है. सो ऑटोमेटिकली हमें ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, अगर हम इसको बार बार पढ़ते जाएंगे तो किसी तरह ये दिमाग में चला जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू. योर ब्रेन इज़ सो केपेबल कि there are just some techniques on how your brain works. Once you learn that, it's very easy to get anything into your brain and store it efficiently. एंड येस, एजुकेशन सिस्टम इस वक्त सिर्फ आपका यही चीज़ टेस्ट कर रहा है कि आपने किताब में जो पढ़ा था वो एग्ज़ाम में डुप्लीकेट कर पाए.
सो बेसिकली आपकी मेमोरी टेस्ट हो रही है, क्रैमिंग इन्फॉर्मेशन, मेमोरी की तो स्किल्स नहीं आती, तो क्रैमिंग ही या रोट लर्निंग ही उसको टेस्ट किया जा रहा है, बट नॉट स्किल्स, नॉट एक्चुअल लर्निंग। हम उसी पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी विल सून रिवर्ट। And We have another again, question. We have another question that was on another page. Asghar Kareem ने हमसे पूछा है कि please ask how we can attract students towards learning as we know that we are good learners. Quran ही इसकी उन्होंने option दी हुई है कि as we can do that. So we know we are good learners, but how to attract students to enhance their learning skills? स्टूडेंट्स अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, ये देखिए इतना आपके सामने है कि एक सवाल पूछने, और ये आई थिंक हर स्टूडेंट आपसे बोलेगा कैसे अट्रैक्ट कर दें स्टडीज में। ये मेरे ख्याल में अपने बच्चों के लिए पूछ रही है। yes. बच्चों को क्योंकि हमने इतने हार्ड तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, इनफैक्ट सिखाते ही कहाँ हैं, हम तो सिर्फ बोलते हैं ये पढ़ना है, ये करना है, ये एग्ज़ाम देना है, तो वो अपनी ही एक जिद्दोजहद में वो बच्चा लगा होता है। हम कभी उसकी एज अडल्ट्स, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स उसकी स्ट्रगल नहीं समझते। यू नो कि अगर मैं आपसे पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, जब मैं छोटी उम्र में थी, तो मैं खुद भी सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, ज़ाहिर बात है दिस वाज बिफोर आई गॉट टू नो ऑल दीज ट्रेनिंग्स एंड ऑल दीज टेक्निक्स, एग्ज़ाम पास करने के लिए रट्टा मारती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, येट वो रोट लर्निंग के ज़रिए मैं A1 स्टूडेंट थी। बट क्या वो मेरी स्किल बनी, मैंने बहुत खुशी से किया? नहीं, वो एक स्ट्रगल था। आई वुड से द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई एजुकेशनल करियर के, वो एक स्ट्रगल थी, एक जिद्दोजहद थी। तो स्टूडेंट्स को अगर आप सही तरीके से सिखाएंगे, और एक्चुअल लर्निंग और असल लर्निंग जो नेचुरल ब्रेन के लिए, इट्स ऑलवेज फन, इट्स ऑलवेज ईजी, इट्स ऑलवेज फन, इट्स ऑलवेज ईजी। सो अगर आपके बच्चे को लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है और वो करे तो गलत तरीके से सिखा रहे हैं, उनको हमारे पास भेजिए, हम उनको अच्छे तरीके से सिखाएंगे तो वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। and next question is again by Nabil. The main part of information that we get is absorbed using our eyes. What happens with our memory when performance of our eyes is reduced? Okay, so मैम आंखें एज इन कमज़ोर हो जाना, I'm assuming वो कह रहे यस कमजोर हो जाना, या फिर आपने आंखें बंद की हैं या आप देख नहीं रहे, तो वो कह रहे किस तरह फिर आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट होती है जब आप आंखें यूज नहीं कर रहे या कम यूज कर रहे? देखिए, जो मेमोरी टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर ऑल विजुअल, एंड बाय विजुअल आई मीन कि आपके दिमाग की विजुअल कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं, आपके दिमाग की इमेजिनेशन की पावर को इस्तेमाल करते हैं, एंड आपके दिमाग की लर्निंग स्किल्स को, विजुअल लर्निंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आइज़ एज इन कमज़ोर हो गई हैं तो वो फिक्स की जा सकती हैं थ्रू प्रॉपर डाइट, आपकी आंखों, आपकी नज़र सही हो सकती है। और अगर आंखें बंद हैं या एज सच, तो हमारे कोर्स में हम आपको आंखें बंद करवा के भी चीज़ें सिखाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप दिमाग की पावर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। और यहाँ पर रीडिंग के बारे में भी बोलूँ तो लोग ये सोचते हैं कि रीडिंग इज़ डन थ्रू आइज। येस, वी यूज़ आवर आइज, वो एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, बट रीडिंग, स्पीड रीडिंग जो हमारा वन ऑफ द कोर्स है, उसमें किस्सा जो है सैयदा किस्सा ज़हरा यूके की, यूनाइटेड किंगडम की स्पीड रीडिंग चैम्पियन है। तो रीडिंग इज़ डन इज़ अ प्रोसेसिंग, उसे कहते हैं कि कैसे आप ब्रेन की प्रोसेसिंग को बढ़ा सकते हैं। तो रीडिंग के लिए आप आंखें एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बट इट्स योर ब्रेन की स्पीड, प्रोसेसिंग की स्पीड जिसको हम बढ़ाते हैं। तो वी यूज़ आइज एज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, बट इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट द ब्रेन जिसकी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, अच्छा, we have another question before we wrap up the session. Sultan Mahmood is asking, please recommend easy mind sports to start with and practice in your daily routine. Mind sports, अच्छा, तो अब माइंड, आई डोंट नो व्हाट इज रेफरिंग टू माइंड स्पोर्ट्स, बट आई थिंक व्हाट आई कैन से कि अगर आप घर बैठे अपनी ब्रेन की जो एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स को, तो देयर आर फ्यू सॉफ्टवेयर्स एंड गेम्स, नॉट पबजी, नॉट कैंडी क्रश, जिनके ज़रिए आप ब्रेन की वो कर सकते हैं। लेट मी जस्ट नेम अ फ्यू। अगर आपको गेम्स खेलनी ही है या आपके पास ऐसा फ्री टाइम है, इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। उनको ये गेम से हटाएं और उनको ये चीज़ें पकड़ाएं जिससे वो गेम्स के गेम्स हो जाएंगी, लर्निंग की लर्निंग हो जाएगी। वन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स और ऐप इज़ कॉल्ड Lumosity, the other one is called Brain Builder, and third one is called Neuronation. So these are things that you can do at home
जिससे आपकी डेली स्किल्स भी बढ़ेंगी. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर्स जो हमारी ट्रेनिंग्स के साथ हम ऑल्सो बताते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं तो ये करने चाहिए, जिससे आपके खास तौर पे बच्चों के लिए. Numan is asking where to learn this course. If this course has an online platform, please guide if you can like refer to your website, Sunny. So our website is called www.ihmd.co. Let me say that again, www.ihmd.co. इस वक्त जो हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसे जो दुनिया का नंबर 1 माइंड मैपिंग कोर्स है, जिसको हमने पूरा विजुअल तरीके से डिज़ाइन किया है, और वाहिद ऐसा आपको कोर्स मिलेगा जो माइंड मैपिंग को नॉट आपको सिर्फ ओनली माइंड मैपिंग सिखाएगा, बट आपको उसकी 7 एप्लीकेशन सिखाएगा. साथ साथ आपको माइंड मैपिंग के कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट कैसे करते हैं वो भी सिखाएगा. सो वी टुक 1 year टू डिज़ाइन दैट ऑनलाइन कोर्स, एंड वो ऐसा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, विजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, नॉट जस्ट प्योर लेक्चर्स ऑन ए वाइट बैकग्राउंड और वॉलपेपर और चार्ट, बट एक्चुअल एक विजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस. वो हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है. इट्स अ सेल्फ पेस्ड यूजर फ्रेंडली कोर्स जो आप कर सकते हैं. उसके अलावा स्पीड रीडिंग एंड मेमोरी स्किल्स कोर्स, ये भी बहुत जल्द ऑनलाइन आने वाले हैं. अगर आप मेमोरी स्किल्स के कोर्स में इंटरेस्टेड है, मीनवाइल स्पीड रीडिंग के कोर्स में इंटरेस्टेड है, until they do come online, तो फिर आप हमें कांटेक्ट करें वेबसाइट के ज़रिए. इनफैक्ट 27th of this month से हमारे तीनों कोर्सेज बैक टू बैक शुरू हो रहे हैं. माइंड मैपिंग फॉर 10 days, फिर स्पीड रीडिंग फॉर 10 days, फिर मेमोरी स्किल्स का कोर्स फॉर 10 days. सो दिस 27th से शुरू हो रहा है ऑनवर्ड्स. ये कराची में हो रहे हैं. दे आर बीइंग कंडक्टेड बाय मी. मेरे साथ 1-on-1 ट्रेनिंग होगी इन आवर इंस्टीट्यूट इन कराची. Thank you very much, Sania and Ima. And before we conclude, we would like to have some concluding remarks from your side, and then we'll be wrapping it up. मैं ये बोलूँगी कि पाकिस्तान में ये हम लेकर आए हैं, इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पहले ये कभी अवेलेबल नहीं थे, अब ये हैं, और हम इसको लेकर आए हैं. तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों की जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं उनको इन्हांस करने के लिए, अपने प्रोफेशनल करियर्स इन्हांस करने के लिए इनका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यही है जो आपका करियर डेवलप करेगा, और यही बच्चे हैं जो आगे मुस्तकबिल को लेकर जाएंगे. तो क्यों ना इनको वो एक्चुअल में असल वो गिफ्ट दें जो इनकी ज़रूरत है, जो इनके साथ लाइफ टाइम चलेगा. एंड एमा? Yes, so मैं इन competitions में हिस्सा ही इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि I want to inspire youngsters like myself who are students, who are studying and wanting to get into their careers, that they need to get this course and learn how to learn, because our brains are naturally capable कि वो इतनी तादाद में information को process कर सकते हैं. It's just that we don't know how. So I really want to inspire everyone to learn how to use the potential of their brain. And Emma, what are your future aspirations? What in the future for you now? In the future, there are more proud moments, making my country proud through these mind sports competitions, memory, mind mapping, and speaking. ये एनुअल कॉम्पिटिशन होते हैं और हर मुल्क में भी होते हैं. तो एक तो ग्लोबल फाइनल होता है जिसमें सारे मुल्क मिलकर करते हैं, फिर हर मुल्क का भी होता है, जैसे फ्रांस का हो गया, लंदन का हो गया, तो ये सारे मुल्क भी करते हैं, तो उनमें भी ये लोग कम्पीट करते हैं, फिर ग्लोबल फाइनल्स में भी जाते हैं. सो ये थ्रू आउट द ईयर जो है, बट ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन से थोड़ा ऊंच नीच हो गई है, बट अ लॉट मोर टू कम फ्रॉम एमा एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम. So Emma, have you organized the extra spacing for stacking more medals? Yes, absolutely. I want to make my country. The base is prepared. Yes. And I and Ali would be joining you for next competitions. Absolutely, that would be lovely. Please, most welcome. Yeah. Okay. I would just read out the one last comment from Mr. Mahir Khan. He is saying, I also want to make my country proud. मुझे भी record तोड़ना है. I'm hardworking boy. I have the potential to break Imran's record. Just me. How to be part of it? Is it free? Mahir, Sania has told her website is www.ihmd.co. Please visit the website and you will get all the details. Now, thank you very much once again, Emma and Sania. We are honored and blessed to have you, and we are extremely thankful that you took out time from your busiest schedule. You guys are traveling all across Pakistan, from Karachi to Islamabad to Lahore, and then having
4 or 5 meetings a day. So we are honored to have you, and we are blessed that you gave us your precious time to us. For our viewers, we would like to tell you that we are having these webinars on regular basis, and our next webinar would be tomorrow. Mr. Nikhil Chadha, the Chief Mind Officer, would be talking on the power of mind. So please join us. It would again be focusing on the power of mind. And we have related both of these webinars from memory to mind. So please join us at the same time, 4 p.m. to 5 p.m. And we would love to share the knowledge with our viewers. Thank you very much, Ima, Sania, and thank you very much, Ali. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Take much. care. Take care. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.